अब हम चलते हैं अपनी दूसरी किताब पे, जिसका नाम है सुपर एक्सिलरेटेड लिविंग। सुपर एक्सिलरेटेड लिविंग का मतलब है, एक्सिलरेशन का मतलब होता है स्पीड लगाना, सुपर मतलब और ज्यादा स्पीड लगाना, लिविंग का मतलब होता है जिंदगी जीना, है ना। तो बहुत स्पीड से जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है, तो हमको सारे वो ब्लॉकेजेस हटाने का क्राइटेरिया मिस्टर बेंचिनो मसारो, द वेरी हैंडसम मिस्टर बेंचिनो मसारो बताते हैं, राइट। क्योंकि वो एनलाइटेंड है, उनकी अवेकनिंग हो चुकी है, और अवेकनिंग के बाद वो रिट्रीट्स करते हैं। ही इज डिफरेंट। अगर आपने उनको सुना है तो ही इज अमेजिंग, ही इज डिफरेंट। मतलब लिटरली ऐसे लगता है कि भगवान उनका रूप लेके इस धरती पे पैदा हुए हैं, राइट। इस तरह से ऐसा ही लगता है देख के। और हम क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे, क्योंकि अभी Q&A राउंड चल रहा है उनकी मीटिंग का, जिसमें पार्टिसिपेंट्स उनसे सवाल कर रहे हैं और वो उनके जवाब दे रहे हैं। एंड आज हमारे लिए पढ़ रही हैं Sarita, question 4. This feels funny to say, so let me just say it. I'm sweet to me, and this is what I always wanted in the world. B is Bentino. Is that true? Are you seeing a group of people, or are you seeing sweetness? I am looking at all of you, but all I see is that I am really sweet being. I don't have to actually see you. I can look you in the eyes and see that I am a really sweet being, and the more present I become with my own chosen frequency, the more I actually get a sense of you, the more I notice your higher self instead of just whatever I was thinking about you. So it's music. It is ironic because, again, it is counterintuitive. You think, oh, I am separating myself from other people because I'm not paying attention to them. For me, when I am listening to someone, I am hardly ever listening to them. Honestly, I am just experiencing my own presence. I am experiencing what I desire to experience. And sure, the mouth and the body, they go, oh, really? Awesome. Good for you. I'm so happy for you. Nice. Epic. But I am experiencing what I desire to experience. And what happens is that I start to sense the person's energy opening up, and their energy starts to reflect that lightness and that presence and that permission to just be themselves. When that matches up, there is a true connection. But there can't be true connection when you feel obligated to listen to someone's separate story from your separate self. You need to give yourself permission to be and see only what you prefer to see, frequency wise, in that moment. This gives the person permission to either match that or not, to rise up to that state of confidence and openness. And when they do, that is when love making happens. Love making in any form, not just in the traditional form, just love making. That is when there is a generation of true connection, and that is the very first step of what it is truly like to be connected on a higher self level. It is sort of like the first conscious reflection of that in what you could call physically reality, physical reality. So you are sweet to yourself. This is beautiful. Feel just that. Does it really? Does it feel good? या वील जस्ट टेक अ पॉज हियर। ये हम कर चुके हैं, बट ये अगेन हमारे पास आज लाइक आई डोंट नो व्हाई ये वाला पेज खुला है। सो मे बी यूनिवर्स वांट्स अस टू अंडरस्टैंड इट मोर, बीइंग स्वीट टू आवरसेल्फ। दिस इज व्हाट, मतलब यही मैं हुक्ड ऑन हुई थी इसमें देख के। सो आर वी स्वीट टू आवरसेल्व्स? बिकॉज इफ यू आर स्वीट टू योरसेल्फ, दैट इज व्हेन यू विल सी द वर्ल्ड एज स्वीट। नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं अरे लोगों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, जमाना बहुत बेकार है, ऐसा हो जाएगा,
लोगों पे भरोसा नहीं है, लाइक इस तरह की चीजें होती हैं। तो वो होता है जब आप अपने आप पे भरोसा नहीं करते हो तो आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, है ना? So this is how it is. So there was somebody who was talking to me yesterday. No, day before yesterday. Somebody who was talking to day before yesterday. A person who's totally neutral, जो हमारे इन सेशंस में नहीं है, और ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही थी। So that person's telling me that why do you give, like, you have so much of knowledge or whatever it is. So why do you have to give it to people? Exclusivity आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप जितना ज्ञान आपके पास है, आप हमको पता है कि आप हमेशा देते रहते हो, सुबह 6 बजे 11 बजे तो बहुत ज्यादा, उसके बाद ऑफ कोर्स लाइक सोशल मीडिया पे और इंस्टा पे कुछ ऐसे बता के, तो आप क्यों इतना ज्यादा ज्ञान दे रहे हो? मुझे इतना फनी लगा वाला क्वेश्चन। मैंने कहा नो, आई एम नॉट इनसिक्योर एज अ पर्सन कि मुझे लग रहा है कि किसी और की वजह से मेरा काम कम हो जाएगा या किसी को वो सारे हैक्स पता लग जाएंगे जो हम करते हैं। मैंने कहा मैं तो बहुत खुल के बताती हूँ कि मैंने ये प्रैक्टिस की, ये मेरी प्रेयर्स थी। तो जब जैसे हुआ था ना, जब कुशल और शिवी का भी एक्सपीरियंस हुआ था, तो मैंने आपको वो 5 पॉइंट्स बताए जो मैं लिखती हूँ। तो कहते हैं आप सब कुछ ऐसे क्यों बता देते हो? तो देखो, नॉर्मल लेमैन ऐसे ही सोचता है ना, जो हमारे सेशंस में नहीं है, जिसका ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वो हमेशा यही सोचता है। जैसे अगर हम इंटर्नशिप भी कराते हैं तो बोलते हैं आप इंटर्नशिप करा रहे हो, आप उनको सब कुछ बता देते हो, मतलब ऐसे कि आपको जो ज्ञान है आप उनको ऐसे बता दोगे, आप इंटर्नशिप कराओगे। तो मैंने कहा हाँ। सो मैंने कहा मेरा तो काम ही यही है, मैं तो इसी पर्पस के लिए आई हूँ, बिकॉज अब इतना सारा सीखा है और बेस्ट मेंटोर से सीखा है, तो नाउ इट इज अ टाइम दैट इट इज द टाइम टू गिव। सो दैट पर्सन, और मेरा एंड में मतलब वो कॉल ना बहुत कॉन्फ्लिक्ट के साथ खत्म हुई। तो मैंने कहा नो नो, इट इज डेफिनेटली आर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इसमें कुछ अच्छा है और बुरा मानने की जरूरत नहीं होती है। मतलब मैं ऐसी हूँ और ऐसी ही रहूंगी। और अगर मैं कोई किताब भी पढ़ती हूँ तो मैं उसकी समरी जरूर बता देती हूँ कि देखो कल ऐसा पढ़ा था या कोई नई एफर्मेशन ऐसे मिली थी, तो ऐसे कर लो, वो कर लो। तो कहते हैं कि नहीं, बट आपको नहीं बताना चाहिए ना, फिर क्या फायदा, फिर आपका आपका बिजनेस कैसे चलेगा और आपका वो कैसे चलेगा। तो खैर मैंने वो उस कॉन्वर्जेशन को एंड ही कर दिया, बिकॉज उस पर्सन को समझाने का कोई फायदा नहीं था। ये वो पर्सन दुनिया का रिफ्लेक्शन है, इजंट इट? दुनिया ऐसी होती है। तो बेंचनो मसारो हमको यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि आप अगर इनसिक्योर एज अ पर्सन हो गए, आप भर जाओगे उन मोमेंट से, उन सर्कमस्टांसेस से जो आपको बहुत ज्यादा इनसिक्योर फील कराएंगे, है ना? लेकिन आप अपने स्पेस में, अपनी स्किन में बहुत कंफर्टेबल होगे, ऑथेंटिक होगे, जैसे जैसे डॉक्टर जो डिस्पेंसा बोलते थे, बी वेरी रियल, बी वेरी ऑथेंटिक। अगर मूड ठीक नहीं है तो यू कैन से दैट आई एम नॉट दैट ग्रेट बट आई विल बी फाइन, है ना? कोई मास्क लगाने की अपने चेहरे पे जरूरत नहीं होती है, अपने आप पे वर्क करते रहो, एंड दैट इज इट। जब नहीं किसी से बात करनी है तो नहीं करनी है, ठीक है? इट इज ओके, डज नॉट मैटर। सब लोग इन मोमेंट्स को गो थ्रू करते हैं। तो ये चीज रियलाइज करना, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ जजमेंट हम कुछ नहीं कर सकते। तो वो यही बोल रहे हैं कि आर वी बीइंग स्वीट टू आवरसेल्फ? ये कल मैंने समझाया भी था, आप लोगों को बहुत अच्छा भी लगा था, लेकिन दिस टॉपिक हैज कम टू अस अगेन। दैट मीन्स शायद इन 2 पैराग्राफ्स को पढ़ के हमारी पॉलिशिंग अभी बची हुई थी, और हम हमारी पॉलिशिंग दैट वी नीड टू बी स्वीट, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है ये बेंचमार्क सारों को बोल रहा है कि मैं इतना ज्यादा स्वीट हूं एज अ पर्सन दैट मैं आपकी आंखों में अपना रिफ्लेक्शन देख पा रहा हूं। बिकॉज मुझे ये पता है अगर मैं आपको सो एज अ वेरी स्वीट पर्सन देख रहा हूं, इसका मतलब है दैट मेरी नजरें ऐसी हैं, है ना? सो वो ही वो बोल रहे हैं कि हाँ, अपने आप से कनेक्टेड होना बहुत जरूरी है ना? दैट इज व्हाट ही सेज। सो हम आगे पढ़ते हैं। हाँ जी। Question. It does. Right now, I feel a little frozen because I feel scared. Bentino. That is beautiful. How would you like to feel? Question. I guess I would like to feel embraced and warm and that we are playing. Beautiful, Benthino, beautiful. And simply talking about it already starts to generate it a little bit. The fear can be there. Can you see that? The fear is actually part of the circumstances, like this table. This table does not indicate how I should feel about it. So if I'm afraid of it, that doesn't mean I should feel afraid of it. I can actually feel really sweet about my own fear. Like the table, the fear is also circumstantial. You can see only that which you wish to see.
whether fear arises or the frequency of your choice arises in the body. The frequency is not in the body ultimately. The body can translate it into feelings, but you can see the frequency you wish to feel and see, regardless of how the body feels, regardless of how the mind acts up. Even the mind and the body are circumstances, as much as the plant over there is, or the Great Wall of China is. Beautiful. So give me some more statements about what you desire. What do you prefer to see more of? Question. या वन सेक सो इसमें वो बता रहे हैं कि कोई भी चीज हो सकता है कि आप फियरफुल हो किसी चीज से, या कोई कोई आपका ट्रिगर है जिससे आपको वरी ट्रिगर होती है, या कोई सर्कमस्टांस ऐसा है जिससे फियर ट्रिगर होता है। तो और एग्जांपल बता रहे हैं कि जैसे ये टेबल है, हो सकता है कि टेबल आपकी जिंदगी के हालात है ना, मतलब मेटाफोरिकली बता रहे हैं कि जैसे ये टेबल है आपकी जिंदगी का हालात है, और इस टेबल को देख के आपको फियर आता है ना। कई लोगों को होता है हाइट से फियर आता है, हाइट मतलब टेबल यहाँ पे टेबल है वो, तो वो हाइट से आपको फियर आ रहा है, मतलब हाइट पे आप बहुत ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे जाते हो, ऊंचाइयों से फियर आता है, या क्लोज स्पेस से फेयर आता है, लिजर्ड से फेयर आता है ना, कोई भी रेप्टाइल से, मतलब कोई भी आप रेप्टाइल देखे हो, जैसे लिजर्ड भी एक रेप्टाइल होती है, उससे फेयर होता है। इस तरह के डॉग से फेयर होता है, अलग अलग लोगों का अलग अलग तरह का फेयर होता है। तो ये जो फेयर्स होते हैं, फेयर कौन क्रिएट कर रहा है? माइंड क्रिएट कर रहा है ना। तो आपकी फीलिंग्स आपके फियर को ओवरशैडो ओवरकास्ट करना होता है। सो अपनी फीलिंग्स में आप जनरेट कर सकते हो जो आपका कंफर्ट जोन है। मैंने भी डॉग्स के लिए फियर ऐसे ही ओवरकम किया है, मुझे भी बहुत डॉग से बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा डर लगता था। बट इट इज नॉट दैट जिंदगी भर में वैसी बन के रहूंगी कि डॉग से डर, है ना, बिकॉज वी लिव इन इंडिया जहाँ पे डॉग स्ट्रीट पे घूमते रहते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, हर जगह ही मिलेंगे आपको। स्पेशली अगर इवनिंग टाइम में जाओगे तो बड़े सारे डॉग्स होते हैं। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे डॉग्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट देन यू कैंट लिव इन फियर। फेयर इज वो अगर आप पे बाक कर रहे हैं और आपको चेस करना शुरू किए किए हैं, दैट्स ओनली बिकॉज अब वो डॉग्स भी आपका फेयर सेंस कर लेते हैं, है ना। अगर आप डर के साथ जा रहे हो तो फिर आप वो सारी चीजें अट्रैक्ट करो। तो कह रहे हैं कि वो डरना नहीं डरना, ह्यूमन माइंड बहुत इवॉल्व है, वो उसको डर के रूप में देखेगा ही नहीं। आप उसको सॉफ्ट टॉय के रूप में देख लो, ये नकली है, नकली सॉफ्ट टॉय है, हिलता रहता है ना। मतलब सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं टेडी बेयर और ये सब, वो हिल भी तो सकते हैं, चल भी तो सकते हैं, इजंट इट। हम आजकल जब बाहर के कंट्रीज में जाते हैं तो वहां पे हमारे लिए ह्यूमन वेटर्स तो नहीं आते ना हमारा ऑर्डर लेने के लिए, रोबोट्स आते हैं, है ना। जब बाहर के देशों में हम जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट में, जो अच्छा रेस्टोरेंट अगर वहां पे बैठे हैं, तो वहां पे इंसान नहीं आते आपका ऑर्डर लेने के लिए। अगर आप अंदर एंटर हुए हो, आपकी टेबल नंबर 12 है, तो एक रोबोट आपको लीड करता है, वो आगे आगे चलेगा, आप पीछे पीछे उसके चल रहे हो, वो आपके आपके उसमें फीड किया हुआ है कि आपकी टेबल नंबर 14 है ना। एआई इतना इवॉल्व हो चुका है आजकल। एंड दैट रोबोट जो आगे आगे जाएगा, और इतने बड़े रेस्टोरेंट में जहां पे 50 टेबल है, वहां पे टेबल नंबर 12 आपने बुक करी थी, या आपकी 12 नंबर की है, तो वो 12 नंबर, तो आप काउंटर पे जाओगे, वहां पे आपको पता लग जाएगा कि आप 12 नंबर पे जाना है, वो आपकी टेबल रिजर्व्ड है। तो आप उस 12 टेबल पे जब आप जाओगे तो आपको रोबोट लीड करेगा ना, रोबोट आगे आगे चलता है और आप उसके पीछे पीछे चलते हो। 12 नंबर की टेबल पे वो आगे रुक जाएगा, इसका मतलब है वो आपको कह रहा है बैठ जाओ, यही आपकी टेबल है तो आप बैठ गए वहां पे। उसके बाद मेन्यू भी उसी में आता है। सो दिस इज हाउ इट इज, राइट। तो इस तरह से जो भी हम देख रहे हैं, कोई भी अगर ह्यूमन किसी तरह से बिहेव कर रहा है जो आपके सर्कमस्टांस में, या वो डॉग है या वो लिजर्ड है, ये सब आपके माइंड की रेप्लिका होते हैं। अगर आपके माइंड में लिजर्ड से बहुत ज्यादा फेयर है, यू विल बी सराउंडेड बाय लिजर्ड्स एवरी डे। देयर बी अ लिजर्ड जो आपके घर में आएगी, आप किसी के घर जाओगे वहां पे लिजर्ड आ जाएगी, आपके पैरों के पास से लिजर्ड होके गुजरेगी, बिकॉज आप वो आपकी क्रिएशन है ना। मतलब सबकॉन्शियस माइंड तो ये नहीं समझेगा ना कि इसको डर लगता है, इसके सामने मत लाओ। सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं होता है। जो चीज पे आप अटेंशन देते हो, जो चीज आपके दिमाग में है, वो कहता है ओके गिव मी मोर, लेट मी गिव यू मोर। तो आप लिजर्ड के बारे में सोच रहे हो, आई एम स्कैर्ड ऑफ लिजर्ड, आई एम फियरफुल ऑफ लिजर्ड, आई डोंट लाइक लिजर्ड, एंड यू विल बी सराउंडेड बाय लिजर्ड्स। जहां आप जाओगे आपको लिजर्ड नजर आएगी, है ना। आप मूवी देख रहे हो, उसमें भी कुछ लिजर्ड की बात आ जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगा। दैट इज हाउ लाइफ इज। सो मेटाफोरिकली बेंटिनो मसारो आपको समझा रहे हैं दैट आपकी फीलिंग, आपका माइंड कंट्रोल आपके पास है।
आपको कैसा फील करना है, आपको इग्नोर करना है या आपको बोलना है दैट यू नो लाइक यू हैव द करेज टू जस्ट फील वेरी नॉर्मल लाइक दैट वे। तो ये आपके हाथ में है, रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू नो वट एवर। सो ये सेइंग दैट माइंड एंड बॉडी ये दोनों आपके हाथ में है, आप देखो आपको कैसे इस तरह से कंट्रोल करना है। So he says that even the mind and the body are circumstances, right? So जो आप उसमें प्लांट कर रहे हो वो अच्छा हो जाएगा। जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसको आप एज अ ब्यूटी देखो या आप ऐसे देखो कि वो गॉड कितनी जायंट है, इतना ऊपर इतनी ऊंची बनी हुई है, मुझे तो डर लगता है। या फिर आप ये बोलो दैट इट इज सो ब्यूटीफुल, कितनी अच्छी क्रिएशन, इज द फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड आउट ऑफ द सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। तो वो आप उसके लिए कर सकते हो। सो दैट्स व्हाट। सो फिर बेंटिनो मसारो इस पर्सन से बोल रहे हैं कि मुझे कुछ स्टेटमेंट्स दो, आपको क्या चाहिए जिंदगी में, आप क्या, आपकी प्रेफरेंस क्या है। लास्ट मतलब इनकी ये कॉन्वर्जेशन ऐसे ही कंटिन्यू है दैट आप क्या चाहते हो। बेंटिनो मसारो पूछ रहे हैं उस दर्शक से जो उनके सभा में बैठा हुआ था, जो उनके रिट्रीट में था। हाँ जी सरिता जी। Yes. Yeah. Question. The main thing was I'm sweet to me because that was what I was looked for out there. And I didn't see very much of it. Bentino. To be embraced, to be loved, to be sweet. Yes. Question. The other one is that we are playing. And Bentino. And aren't we? Question. Yeah, we are. You are really good at it. I am really good at it. Bentino. You are so fast. Yes, play. Play your heart out. There is nothing to fear. Fear, protection, and defense are related to the idea that there is an outside world. When you see that the outside world is generated by you, therefore it must be. I'm thoda upar. Therefore, it must be made out of your own energy. Then suddenly you feel, oh, wait, I am free to play. Nothing can ever harm me because it is whatever I say it is. Beautiful. I am sweet to me. That is gorgeous. That is a gorgeous frequency right there. I am sweet to me. Beautiful. Thank you. Yeah. So thank you, Sarita ji, and you read so beautifully, and I'm sure everybody is overjoyed. Thank you so much. Thank you. या सो ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसमें बेंटिनो मसारो बोल रहे हैं दैट उन्होंने बताया कि अगर आपको, अगर आप बहुत ज्यादा मतलब वो एक तरफ हमको सिखा रहे हैं दैट आउटसाइड वर्ल्ड आपका क्रिएशन है, आप गॉड हो, आपके अंदर गॉड की पावर है, बाकी सब कुछ जो आपकी बाहरी दुनिया है वो आपका क्रिएशन है। तो कह रहे हैं अगर फियरफुल हो रहे हो या कोई चीज आपको वरी कर रही है, इसका मतलब है आप तो विक्टिम हो गए, अब आप क्रिएटर कहाँ हो। बिकॉज आप उस चीज को वैसे देख सकते हो जैसे आप चाहते हो, है ना। हाँ, कभी कभी हमको इस माइंड गेम को प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, एकदम से नहीं आती है ये सारी चीजें। बट बेंचिनो मैसारो ने डिस्क्लेमर में पहले ही कह दिया था कि मैं ये मान के बैठा हूं कि आप सब लोग जो यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हो, ये जो मेरी किताब पढ़ रहे हो, आप सब लोग उस लेवल पे पहुंच गए हो जहां पे आपको मेरी बातें समझ में आएंगी और आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता है और आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में पता है। उन्होंने पहले ही बता दिया था कि अगर आप उस लेवल पे हो तब आप ये वाली किताब पढ़ो मेरी, है ना। अदरवाइज आपको नहीं रेजोनेट आप कर पाओगे। लेकिन हम सब, क्योंकि हम बहुत सालों के बाद ये किताब कर रहे हैं, इजंट इट, हम बहुत सालों के बाद ये किताब कर रहे हैं। मतलब हमने 2020 में किया था, उसके बाद हम सुपर एक्सलेटेड लिविंग कर रहे हैं। इसीलिए नहीं किया था क्योंकि हमें पता था कि ये किताब शुरू मतलब बूम की तरह शुरू होती है, मतलब बिल्कुल आपको वो कर देगी, लेफ्ट राइट सेंटर रेवोल्यूशनाइज, इस तरह की ये किताब है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि ये वरी तो आपको इसीलिए हो रही है ना क्योंकि बाहर कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं पसंद आ रहा है और देयर समथिंग दैट यू आर फियरफुल अबाउट। लेकिन आप तो जनरेटर हो, यू आर गॉड, यू आर क्रिएटर, यू आर सिटिंग इन द क्रिएटर। आप क्यों उसको ऐसे देख रहे हो कि उसको क्यों विक्टिम की तरह देख रहे हो। अगर आप विक्टिम रहोगे तो विक्टिम तो आप और इनवाइट करोगे ऐसे सर्कमस्टांसेस। इसका मतलब है आप अपनी पावर जानते ही नहीं हो। लेकिन वो कह रहे हैं अपनी पावर जानो, और फिर जैसे ही अगर कुछ होता है आपकी जिंदगी में जो बाहर के सर्कमस्टांस में जो आपको नहीं पसंद आ रहा है, देन चेंज योर एनर्जी और अपने आप से बात करो
जैसे वो बता रहे हैं, अपने आप को बोलो, जैसे मैं दीप्ति को बोलूंगी, है ना, अगर मुझे वो लिजर्ड नजर आई जिससे मैं बहुत डरती हूँ, या मेरे घर के अंदर या मेरे गेट के अंदर कोई ऐसा स्ट्रे डॉग आ गया और मुझे लग रहा है ओ गॉड व्हाट इज दिस और समथिंग लाइक दैट, देन आई विल से ओ वेट, आई एम फ्री टू प्ले, लेट मी प्ले, है ना, बिकॉज एक्चुअली यूनिवर्स लव्स प्लेफुलनेस। तो वो सीरियस लोग नहीं पसंद, उनको। तो just play. Say that nothing can ever harm me because it is whatever I say it is. तो अगर मेरे घर के अंदर लिजर्ड भी आई है, तो I will say nothing can ever harm me. I'm here to play, I'm here to create. मैं अपनी रियलिटी क्रिएट करने के लिए हूँ। Let me play. वो ही होगा जैसा मैं चाहती हूँ, right? And he says it is beautiful and everybody is very sweet to me. Isn't it gorgeous? राइट, सो वो गॉर्जियस वाली फ्रीक्वेंसी आपने जनरेट की क्योंकि आपने शब्दों का ऐसा चयन किया। आपने दो शब्द बोले उस वक्त, ब्यूटिफुल, गॉर्जियस, है ना, इस तरह से। एंड देन से दैट आई एम वेरी स्वीट टू मी, एवरीथिंग इन माय एनवायरनमेंट विल बी स्वीट बिकॉज आई एम जनरेटिंग सेफ्टी, आई एम जनरेटिंग गॉर्जियस, आई एम जनरेटिंग ब्यूटिफुल। तो वो ये बोल रहे कि अपने आप से बात करो, ओ दीप्ति, लुक, वेट, दिस इज हाउ इट इज, है ना, एंड दिस इज व्हाट यू वांट टू जनरेट। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारी बाहरी दुनिया में डेफिनेटली फर्क आ जाता है। ठीक है, सो दैट वे, सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिएटर हमको बना के छोड़ेंगे इस किताब के बाद। अभी तो हमने 1/4 ही की है इसको, बट आगे आगे ऐसा ही होगा।